फ्रेंड्स, हमारे साथ डॉक्टर नीता मवार हैं, one of the anthropologists who has contributed a lot in the study of AIDS. We are fortunate to have her. और हम जानना चाहेंगे कि सरकार क्या कर रही है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या कर रहे हैं, एंड व्हाट इज़ द स्कोप फॉर एंथ्रोपोलॉजिस्ट नॉट ओनली इन प्रमोटिंग सेक्स एजुकेशन बट आल्सो प्रमोटिंग एंथ्रोपोलॉजी इटसेल्फ। क्या मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। दूर से आप चल के आए। नहीं, थैंक यू वेरी मच फॉर being concerned about a problem like HIV, which was a very big problem in our country. मेरा तो इशू ये है कि एंथ्रोपोलॉजी की बात हर जगह पहुंचनी चाहिए। हाँ। और एंथ्रो किस किस फील्ड में कहाँ कहाँ कंट्रीब्यूट कर सकती है। हाँ। मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ कि मैंने एक ओरिएंटल में एक आर्टिकल लिखा, व्हाट इज़ इंडियन एंथ्रोपोलॉजी। तो मैंने उसमें पूछा कि अगर मेरे को कोई नॉविस पूछता है ना व्हाट इज़ एंथ्रोपोलॉजी, वो तो मैं उसको समझा देता हूँ। पर अगर कोई मेरे को एंथ्रोपोलॉजिस्ट पूछे व्हाट इज़ एंथ्रोपोलॉजी, तो मैं काउंटर क्वेश्चन पूछता हूँ व्हाट एंथ्रोपोलॉजी इज नॉट। अपने आप जवाब मिल जाएगा। पर लेकिन इतने खूबसूरत सब्जेक्ट को जानते नहीं लोग। यूटिलिटी की तो बात छोड़ो, सब्जेक्ट को ही नहीं जानते। तो इसलिए जो है ये पॉडकास्ट जो है वो इम्पोर्टेंट हो सकती है। पहले तो मैं चाहूँगा कि आपका एक्सपीरियंस, हाउ यू एंटर्ड ICMR। As an anthropologist, my interest was always not only to limited to only teaching in the universities, but it was something to use this knowledge to apply elsewhere. Applying anthropologist as an anthropologist and using anthropological approach as an application was, I thought, an important role for anthropologists. So I was working initially after my, while doing my PhD, I was working in the National Institute of Health and Family Welfare. So there we had a social science department and anthropologists were always required. My PhD guy, Dr. Amrita Burton, was working there and I was there working on a topic of female fertility. It also was my PhD topic because that was the time when in 1975 it was the International Women's Day being declared as. So I thought this was a good area to take in because PhD हमने अभी MSc के लिए खत्म हुआ था, रोल कर रहे थे, but this was a good topic to be taken. So I worked over there. Then soon after that project was over, the International Labour Organization had contacted India, one of the sites, to work on status of women and decision making. Because knowing the status is one thing, but how can they be the decision makers? Here we found that role of women is very vast. Morning till evening they are working. Right, morning to evening they are working. Throughout the day, men are also working but for a lesser time. The leisure hours for men are much more than for the women. Because women may not be working very hard, but their time consumption is very much there. When you turn it to economic terms, the women's role is very much high, whether it is picking wood, collecting water, spending time was there in terms of economic terms. So we did a time use data to understand the amount of work women contributed in terms of men. So women contributed much more work, but when it comes to remuneration, they did not have much. Because in rural areas, tribal areas, the form of remuneration is only money. In not cash, but it is always in kind. That means, गेहूं उठा के दे दिया, डॉक्टर से ट्रीटमेंट हो गया, दुनिया से ट्रीटमेंट हो गया. Because they could not think of going out because they never had cash in hand. बस का ट्रैवल कैसे करेंगे, गवर्नमेंट की हॉस्पिटल फैसिलिटीज कैसे यूज करेंगे बोल रहे. मेन जब जो भी उन्होंने काम करा है खेत में भी, बेचने कौन जाता है, मेन. कंट्रोल ऑफ द मनी इज विद द मेन. सो डिसीजन मेकिंग रिमेन्स विद द मेन. देयर डिसीजन मेकिंग इज ओनली कि आज रोटी बना लेते, हम कौन सी भाजी बना लेते, ये कर सकते, नॉट मोर देन दैट. बच्चों को स्कूल भेजना है या नहीं, बिकॉज मनी इज इन्वॉल्व, दे कैन नॉट डिसाइड, इट इज द मेन टू डिसाइड. लड़के को बाहर स्कूल भेजना है. These are the, so we found these kind of studies. In the initial stage we did this study. किस एरिया में? ये हमने करा था उस समय यूपी के 3 साइट्स लिए थे हमने. कौन? यूपी में हमने लिया था, एक तो आगरा लिया था, एक मथुरा लिया था और एक रूरल, एक अर्बन एरिया लिया था, where we were covering the the people who were doing embroidery work, लखनऊ की फेमस एम्ब्रॉयडरी वर्क, चिकन वर्कर्स. तो उसमें हम लोगों ने देखा कि
the contributions of women in terms of work was much more. But when it came to giving them, जब उनकी अपनी हेल्थ की बात आती थी, they had no money with them. क्योंकि मनी काइंड में उनको नहीं मिलता था. तो अपनी हेल्थ केयर वॉज ऑलरेडी सेकेंडरी. कहाँ पे कर सकती थी? सिर्फ लोकल वाले के पास जाकर अपना काम कर सकती थी. बच्चों का देखभाल भी वो नहीं कर सकती थी. वी हैड सीन girls, 7-year-old girl cannot go to school because she has to look after a 4-year-old brother who's sick because mother has gone for work. Compromise किसका हो रहा था? Women का. कुछ साल के बाद ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ने ये वाले प्रोग्राम्स ऐसे इंट्रोड्यूस करे कि चिल्ड्रन कुड टेक देयर यंगर सिब्स आल्सो टू स्कूल व्हेन इट केम टू द मिड डे मील प्रोग्राम. तो अपने वो भाई को वहां पे ले जाती थी, बीमार भाई भी है पर कम से कम खाना मिल रहा है. तो ये फैसिलिटीज, दिस फैसिलिटेटेड इन इम्प्रूविंग एटलीस्ट द स्कूल अटेंडेंस. कहाँ तक वो लोग पढ़ पाएंगे, दैट इज अ सेकेंडरी पार्ट, बिकॉज दैट्स वेरी क्रूशियल. स्कूल में अटेंडेंस, टीचर्स आर वरीड ओनली कि भाई लोग एनरोल्ड हैं, फीस दे दिया, स्कूल की बुक्स दे दी, स्कूल की यूनिफॉर्म दे दी, वहां तक तो ठीक है. पर एक्चुअली कितने लोग फंक्शनल लिटरेसी हो पा रही है या नहीं, वो कोई बात नहीं है. कहीं पे हम कहेंगे कि एजुकेशन प्रोग्राम ही हमारा इस तरह का डिजाइन है. अच्छा, आगरा में हम लोगों ने देखा कि इवन द चिल्ड्रन वर इन्वॉल्व्ड इन कार्पेट वर्क, carpet weaving में. So they were deprived from school. So few years later suggestion did come up from our studies that they should be enrolled for evening classes. So where they could be employed there. तो इसी तरह की हमने studies करी. By that time I had completed my PhD, submitted my thesis and I got a position in the RMRC, newly started RMRC. So वहाँ पे था कि tribal population in Madhya Pradesh must be understood well. 8% of the population of Madhya Pradesh, that time Bastar was also part of Madhya Pradesh. So this population being there, this also needs to be studied. We found a lot of things, right from हम लोग traditional anthropology होते, we were interested in studying right day precisely. From the birth till the death, what happens in men and women, we were more concerned in the health aspects. Yes. But definitely health is very much related to the behavior. क्या क्या उसमें आता है, but we found that there were differences. In the tribal population, fortunately, we found that the difference for men and for boys and girls, starting from the, were not very much, because they were equal partners, which was not true with the rural areas. वो काफी difference हमने उधर देखा हुआ. So that was in a way a very good thing, but they were having certain behaviors which were may not be good for them in terms of their food habits, in terms of the nutrition they would get, because they were totally dependent on the forest area. वो कभी मिलेगा उनको नहीं हुआ, क्योंकि उस समय तक फॉरेस्ट डेप्रिवेशन होने लगे थे, तो उनकी लिमिटेड रिसोर्सेज से होने लगे थे. वी हैड सीन इन देयर बार्टर सिस्टम हाउ दे हैड बार्टर डील्स जो हुई हैं फॉर 1 किलो ऑफ सॉल्ट. वो सॉल्ट वो बाजार से ही लेते थे, जो उनकी वीकली मार्केट्स होती थी. तो 1 किलो इमली के बजाय वो 1 किलो सॉल्ट ले रहे थे, बिकॉज दे डिड नॉट अंडरस्टैंड द मनी, दे ओनली न्यू द एक्सचेंज. वी हैड सीन ऑल दिस थिंग हैपनिंग. क्या नहीं तो वो 4-5 उनके जो खेत में कुछ फ्रूट्स लगे, उसके अगेंस्ट उन्होंने ये ले लिया. तो उस तरह का सिस्टम हम लोगों ने देखा. बट क्योंकि गवर्नमेंट का प्लान था रोड कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, एंड डेवलपमेंट में रोड कंस्ट्रक्शन तो लेबर का भी लेना है, तो वहीं से वो लोग लेते थे. देवर ऑल काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन. वी एज पार्ट ऑफ आवर टीम, we realized STD was there, and this went on as unreported most of the time, but we were doing our tests, so we found that STD was there. So the concern always was, उतनी देर तक हम RMRC आकर हमारा, because HIV was increasing and studies were already being done in India, in, I told you, in Madras, Chennai and in Pune, okay, we need to do work. So I moved to Pune to understand how things were there, with the behavioral component. But you see, the apathy of the government, the apathy of the officials. एक ये था कि जेल इनमेट्स में बहुत ज़्यादा HIV है. Why? Because people who were, whether they were under trials or people who were convicted, we wanted to see how things were. Those people who were convicted for long terms जो थे जेल में,
उनमें HIV इतना हाई नहीं था कंपेयर टू दोज हु वर अंडर अरेस्ट जी। एंड स्टिल अंडर ऑब्जर्वेशन. अभी उनका केस नहीं पड़ा था. द नंबर्स वर वेरी हाई. और पीपल हु वर terrorists and who was put in the jails to prevent other kind of problems. You know how things work in the jail. Now in these we found behaviors to be little different. The risky behaviors to be different because जो long termers थे इन्होंने कोई commit करा crime, murder and all which was a thing, तो उनका कोई एक emotional state था जिसकी वजह से वो उसमें हो गए and they are convicted. But they know what is the behavior for them. They are regular, they are good workers, they are इसमें हमको कोई आर्टिस्ट भी मिले, कोई अदर प्रोफेशनल के भी मिले, कोई तो देयर बिहेवियर्स वर डिफरेंट. बट इन सब के साथ बाकी जो थे उनके साथ कई रिस्की बिहेवियर्स भी थे इन देयर ओन बिफोर दे केम टू जेल एंड ऑल्सो आफ्टर दे वर इन द जेल. बिकॉज we found that there were about 4% people who were HIV infected. 4%. Yes. तो जब जेल अथॉरिटी को हमने बताया कि ये वाली है तो इट्स टाइम दैट यू could consult the doctors, hospitals also for their. तो उन्होंने कहा आप हमको उनके नाम दे दो and we will take care of them. Finding out the names of such people is not important. The important was that we told them the percentage, how they have to live. Because they did not want to take the blame on them. Homosexuality being considered illegal. I'm talking to you early 90s. So they didn't want to take a burden on themselves. Because how would otherwise people would get an infection? Because all kinds of exploitation was happening with the jail inmates. They were exploited by the jailers only, different level people. You see, sex indulgences of different kinds. So those kinds of things happen. So stigmatizing people with low risk behavior would get an infection from people with a high risk behavior. तो how to treat them? तो उन्होंने फिर jail inmates को भी उनको मतलब टेस्ट करवाया. We found that the percentage was quite high, but we did not. मतलब we would not reveal the names of people. So then they were not interested in us. But then they said we would do definitely rehabilitation. So a lot of educational programs and all went in, and how it has needs to be curtailed. So within that jail, those kinds of regulations were attempted, but since it was not a long-term study, we did a zero surveillance, means 1 point study, one-time study. We were not doing a follow-up study. So a little later, it was found that there is a need to do more long-term studies also, not just 1 point. How does it develop? I may be HIV infected now, but how will I get an infection in future? I never know. If I'm given an education at this stage and I'm followed up, then probably I can prevent getting myself from an infection. And continuous education, get till support. So for the youth, it became very important because Ministry of HRD, Youth Affairs Department, there was a big program called the University Top Rates Program, which was implemented something in more than 100 of universities all over India, where they were trying to create peer educators through the teachers of their school to develop a batch of peer educators from the university itself. So teachers would teach and then teach the students. They'll be leaders who would continue spreading, and during their extended education program, they would spread it out to the different communities about this. But then we found that the program was having its own difficulties. There were lots of glitches. When we talked to some of the students, they said teachers come, they don't even talk about biology. Well, so what would they talk about reproductive health? Teacher said, हमको ये वाला topic समझ नहीं आता. English teachers, English literature teachers or Hindi literature teachers, they said, we don't talk about romance and others with the students. वो हम skip कर देते हैं. Now this kind of reluctance on part of teachers, that means communication ही problem हो गई. तो आप education कहाँ पे दोगे? तो ये इस पूरी जर्नी में आखिर में आके एंथ्रोपोलॉजी का रोल कहाँ कहाँ तो यहीं पे तो हमने पहले तो ये तो आखिर में आया नहीं तो ये तो हम डायग्नोस्टिक कराना पहले हमने वी दे सेड कि देयर इज सम प्रॉब्लम, कुछ क्या क्या हो रही है. तो वी डिड द डायग्नोसिस कि देयर रिलक्टेंस ऑन पार्ट ऑफ टीचर्स. तो जब हम लोग अपनी जब ये स्टडीज कर रहे थे, वी प्रेजेंटेड आवर फाइंडिंग्स टू द डिपार्टमेंट ऑफ
youth affairs, where they had called the university teachers, the students and the students also. They said इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा. इस स्कूल में टीचर्स नहीं बात कर सकते, बट वी कैन ऑलवेज सेंड देम एज टीचर्स इन सम अदर स्कूल वेयर द इनहिबिशन वुड बी लेस, राइट. तो इसका मतलब ये है कि सेक्स एजुकेशन कंपलसरी होनी चाहिए, आपका मतलब? सेक्स एजुकेशन तो एक्चुअली पेपर पे है, स्कूल में भी है और कॉलेज में भी है, बट हाउ डू टीचर्स डोंट टीच. व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, जब अपनी बायोलॉजी क्लास में भी एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर एक टीचर नहीं बात कर सकते, तो सेक्स एजुकेशन वाले तो बिल्कुल ही नहीं बात कर सकते. इवन बायोलॉजी टीचर नहीं, बायोलॉजी टीचर्स नहीं बात करते, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बात ही नहीं कर सकते. तो फिर ये हुआ कि अगर हमने HIV के बारे में बात करनी है तो इनको हमको दूसरे कॉलेज में भेजना चाहिए, बिकॉज स्टूडेंट से लिंक नहीं होंगे वो. अच्छा, जिनको रेगुलर पढ़ाते हैं, जैसे मैं अब अपनी क्लास में शायद मुझे इनहिबिशन है क्योंकि मैं उनको लॉन्ग टर्म फॉलो अप कर रही हूँ, और वो मेरे साथ कोई मजाक करे या कुछ करे तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी. तो यही मैं जब कोई और स्कूल में जाकर बात करती हूँ तो उस समय वो लोग शायद मेरी बात सुने भी, वो मेरे से कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं भी बगैर हिचक के उनको आंसर कर सकती हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स सब तरह के टेढ़े मेढ़े बात करते थे. हम लोगों ने जब एजुकेशन अपना प्रोग्राम बनाए तो हमने ऐसे बनाए कि जब हम ओपन ग्रुप में बात करते थे, लोग कहते थे बॉयज को अलग करिए, गर्ल्स का अलग. हमने कहा बिल्कुल नहीं, बॉयज और गर्ल्स एक साथ ही समझेंगे, और उनके क्वेश्चन हम लोग एनोनिमाइज करते थे. सी द इम्पोर्टेंट थिंग इज स्टिग्मा नहीं होना चाहिए. हम लोग स्लिप्स भेजते थे उनको, आप स्लिप्स लिखिए, अपना नाम नहीं चाहिए हमको, अपनी एज लिख लीजिए, कौन सी क्लास के हैं आप, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, बिकॉज वी वांटेड टू डू आवर ओन एनालिसिस. आप अपने क्वेश्चंस लिखिए आपके, क्योंकि कुछ बॉयज के क्वेश्चन होंगे, कुछ गर्ल्स के क्वेश्चन होंगे, बट इसके रिस्पॉन्स जो है वो कॉमनली सबको मिलने चाहिए, क्योंकि खड़े होके वो क्वेश्चन पूछने में हमने देखा, हमने कोशिश करी तो वो पूछना नहीं चाह रहे थे. तो उस तरह से ये हमने जब ये बैरियर्स दिखाए उनको कि किस तरह के बैरियर्स आ रहे हैं, कि क्वेश्चन पूछने में ही बैरियर्स आ रहे हैं, तो टीचर्स को समझ आया और ऑर्गेनाइजर्स जो प्लानर्स थे उनको समझ आया कि हमको ये प्रोग्राम में चेंज करना पड़ेगा. तो यूनिवर्सिटी टॉकर प्रोग्राम्स के नोडल ऑफिसर्स होते हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट में उधर, तो उनके थ्रू ये प्रोग्राम में कुछ कुछ चेंजेस आए. यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि हम लोगों ने ये बोला कि दिस शुड स्टार्ट एट अ मच यंगर एज, नॉट फ्रॉम द कॉलेज लेवल, यूनिवर्सिटी के लेवल पे नहीं कि ग्रेजुएशन में आ रहे, पर इवन यंगर एज, बिकॉज प्यूबर्टी एज में जब वो आना चाहिए. तो उस समय उन्होंने 11th एंड 12th क्लास में शुरू करा दिया था. अच्छा, टॉकेज प्रोग्राम वहां पे शुरू करा दिया था, बिकॉज इट इज डीलिंग विद सेक्सुअल बिहेवियर. टॉकिंग अबाउट इट ओपनली बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मेनी पीपल. अच्छा देखिए, कुछ इसमें बहुत एक मैं बात बताना चाहती हूँ. हमारी स्टडीज में हमने देखा कि विमेन आर प्रोटेक्टेड इन अ सोशल सिस्टम. गर्ल्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाई जाती है कि आपको कॉलेज भेज रहे हैं पर आपको घर अपने 3 बजे तक आ जाना है, 4 बजे आ जाना है. 7 बजे आए तो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो इसलिए उनके ऊपर तो काफी रेस्ट्रिक्शंस हो जाती है. यही चीज बॉयज के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती. वो अगर 9 बजे भी आ रहा है, 10 बजे भी आ रहा है, 11 बजे भी आ रहा है, तो जो बहन स्कूल पढ़ रही है उसको अपनी क्लास, अपनी पढ़ाई को छोड़ के अपने भाई को सपोर्ट करना होता है कि भैया खाना भी दे, अपनी पढ़ाई नहीं. बॉय से कुछ पूछा नहीं जाता, बिकॉज इट इज राइट फॉर हिम टू डू वट एवर ही वॉन्ट्स टू. अब इस बिहेवियर में उनको क्वेश्चन नहीं करा जाता. यू नो, दिस इज आर वेरी बेसिक. हमारे सेक्सुअलिटी नॉर्म्स, दिस इज वेयर एंथ्रोपोलॉजी कम्स, कि हमारे सेक्सुअलिटी नॉर्म्स किस तरह के हैं कि हम गर्ल्स को तो प्रोटेक्ट करते हैं, बॉयज को हम कहते हैं इट इज ओके फॉर देम, बिकॉज मैचो, being macho means don't ask questions, let them do what they want to. But when they get married, they pass on. If they have got an infection, they pass this infection to their wives. गवर्नमेंट में ये फैसिलिटीज हो गई हैं कि एंटीनेटल सेंटर्स जो हैं, एंटीनेटल केयर सेंटर्स, वहाँ पे जो प्रेग्नेंट वेमेन होती है उनकी HIV टेस्ट भी होता है, कंसेंट ली जाती है, टेस्ट होता है. अगर उसमें कोई HIV पॉजिटिव आ गई तो उस वुमन के लिए अकॉर्डिंगली उनको बोला जाता है कि 8th-9th मंथ में उनको AZT ट्रीटमेंट दिया जाता था, जिससे कि उससे वो प्रिवेंट कर सकते थे HIV इन्फेक्शन अपने बच्चे को पास ऑन करने के लिए. Well, it is not transmitted to the
genes, but it is passed through the Congenital. transmission.